I hope you can see my screen, right? Yes, sir. Okay. So here I'm going to give the introduction. तो आप अभी क्या सीखने जा रहे हो? In this whole class, you're going to learn SQL. ठीक है? What is SQL? I will talk about that. But before that, तो आपको you have to really master SQL. ठीक है? ये आपको master करना है. ठीक है? ये क्या होता है? What is SQL? What is the purpose? I will talk about that in some time. Okay. So first of all, before starting the SQL database, let me start very basic thing: data. Okay. What do you mean by data? आपका अगर मैं बोलता हूँ data से, what is your thinking about data, or how do you interpret the data? In a layman term, I'm not talking about technical, very sophisticated technical term. Data का मतलब क्या होता है? आप क्या कैसे इसको interpret करते हो? Piece of information. Data can be anything, Okay. like information or Information. values or Mhm. information. Mhm. Information in numeric code, sir. Numeric code. Okay. Image is not our data. Yes, images are Yes, sir. Image also. Image भी data anything होता है. can be data, sir. इमेज डेटा होता है. ओके. मान लो आप फेसबुक पर चैट कर रहे हो, वो भी एक डेटा है. आप Yes, yes. फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हो, दैट इज आल्सो डेटा. आप लिंक्डइन पर कोई पोस्ट लिख रहे हो, वो भी डेटा है. आप वॉइस मैसेज सेंड करो, वो भी एक डेटा है. ठीक है. अब मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, जूम क्लास जो वीडियो शूट, ये भी एक डेटा है. Yes, ओके. sir. सो एवरीथिंग डेटा, द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. सो डेटा क्या? इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन. हर एक डेटा में आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा. यू विल फाइंड सम इंफॉर्मेशन. ओके. So it can be different form. जैसे text हो सकता है. Just you typing something, it's a text. Number, जैसे salary. ठीक है. Age, these are numbers. Media हो सकता है. It can be image, photos. ठीक है. Videos, sound. ठीक है. These are the medias. Okay. So ये भी data होता है. Okay. Bytes हो सकता है, जो binary format में है. ठीक है. वो भी data हो सकता है. ठीक है. तो these all data. जैसे एम्प्लॉय डेटा, जैसे आप जनरली हम लोग डील कैसे करते हैं? एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय का डेटा हम लोग डील करते हैं, राइट? कस्टमर डेटा, सेल्स डेटा, ठीक है, म्यूचुअल फंड का डेटा, स्टॉक का डेटा, देयर लॉट ऑफ डेटा. वी ऑल सराउंडेड बाय डेटा. आप डेटा को इग्नोर नहीं कर सकते, राइट? एंड वी ह्यूमन इन योर जॉब यू माइट बी डीलिंग विद लॉट ऑफ डेटा. इनवॉइस है, वो भी एक डेटा है, राइट? सो दिस ऑल आर डेटा. ओके. एंड इसको मेन है इसको स्टोर, बिकॉज डेटा जो होता है it's a very important thing. Okay. And data को आप तभी, that is only useful when you are able to process it. मान लो आपके पास tons of data है, okay, but उसको आप process नहीं कर पाओगे, तो क्या फायदा है? Do you think you have tons of data but you are not able to process it? It is useful? No, sir. No, sir. No, right? So data तभी useful है जब आप उसको process करने के लायक हो गए. ठीक है. So that's what आज से 10 साल पहले, ये आज से लगभग 10-11 साल पहले जब मैं आई स्टार्टेड माय करियर, उस समय डेटा था. देयर वाज लॉट ऑफ डेटा. ओके. बट दैट टाइम वी वर नॉट एबल टू प्रोसेस द डेटा, लाइक बिग डेटा, हडूप, ये सब का टेक्नोलॉजी उस समय नहीं था. पैरेलल प्रोसेसिंग. ठीक है. तो उस समय डेटा था, बट वी वर नॉट एबल टू प्रोसेस द डेटा. बट नाउ because of machine learning, because of cloud computing, because of big data, Hadoop, now we are in the position to process big data and petabyte, zettabyte of data, supercomputer. So आज हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं into multiple machines, big machines, servers, and we have the technology to process the data. Okay, that's why, because now we are able to process the data. That's why, because of that, we have a technology like machine learning, advanced machine learning, deep learning. Okay, because of that, these technologies are evolving. Okay, so all the machine learning, everything work behind the data. सब कुछ data है. Okay, because we are able to process the data. Okay, so data को process करने के लिए we need some storage. इसको कहीं ना कहीं इसको रखना पड़ेगा. ठीक है. जैसे मान लो कि I'm giving example. Let's suppose you have 200 balls. Okay, I'm giving you 200 balls. So these balls are the data. ठीक है. इसको आपको प्रोसेस करना है. ठीक है. तो आपको उसको प्रोसेस करने के लिए यू हैव टू पुट समवेयर, कोई कंटेनर चाहिए. मे बी बैग हो सकता है, एक झोला हो सकता है, एक बॉक्स हो सकता है, कुछ ना कुछ आपको कंटेनर चाहिए डेटा को होल्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए. वी नीड सम स्टोरेज, राइट? जब इसको मैं स्टोर कर पाऊंगा तभी मैं इसको प्रोसेस कर पाऊंगा, राइट? सो इट कैन बी स्टोर इन अदर, मान लो कि आप सिंपल, जैसे कि आप एक्सेल,
For example, classical example is Excel. अब Excel में it's a database actually. ठीक है, Yes. अब Excel में क्या करते हो, putting lot of data, customer data, sales data, you can put multiple data in the rows and columns, right? So Excel is another container of holding the data. ओके या पेपर, Yes. आप पेपर पर कुछ लिख सकते हो, अपने अपने कॉपी पर, पेपर पर कुछ लिख सकते हो, अपने हाथ पर लिख सकते हो, इवन योर Diary. हैंड बिकम, डायरी में लिख सकते हो, राइट? इवन योर Yes. हैंड इज अ काइंड ऑफ डेटाबेस, इवन अपना मेमोरी में लिख सकते हो, बट मेमोरी इज नॉट परमानेंट, इट कैन लूज, ओके? सो बट दिस ऑल द कंटेनर्स, तो आपको डेटा को कहीं ना कहीं प्रोसेस करने के लिए यू हैव टू स्टोर समवेयर, राइट? तभी आप उसको प्रोसेस कर पाओगे, राइट? Yes. तो अभी हम लोग डेटा को स्टोर कहाँ करते हैं? नाउ देयर आर मल्टीपल वेज, आप एक्सेल में कर सकते हो, पेपर में कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में कर सकते हो, इवन अपने माइंड में कर सकते हो, बट दैट इज नॉट स्टेबल वे. अगर आपको ह्यूज डेटा को प्रोसेस करना है, यू नीड अ कंटेनर, ओके? सो दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टोर डेटा वेयर वी नीड अ डेटाबेस. ठीक है, सो दिस डेटाबेस कैन बी एनीथिंग. आपका एक्सेल शीट इज अनदर डेटाबेस, इट्स एग्जांपल ऑफ डेटाबेस, वो भी एक डेटाबेस है, राइट? आपका जो डायरी है, दैट इज आल्सो डेटाबेस, ओके? बट इन कंप्यूटर साइंस वी नीड अ स्टेबल स्टोरेज, मतलब ऐसा प्लेस जाए जहां स्टोरेज एक बार स्टोर कर दूं तो इट रिमेन परमानेंट, वो स्टेबल हो. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी नीड अ डेटाबेस. सो डेटाबेस को अगर डिफाइन किया, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा, इट्स अ ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है? इट इज नॉट जस्ट अ रैंडम. ठीक है, डेटा को हम लोग ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ठीक है, इन डेटाबेस, बिकॉज डेटाबेस इज ऑन वे टू स्टोर द डेटा. सो फर्स्ट यू हैव द डेटा, यू हैव टू ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू सम रूल. ठीक है, अब रूल हम लोग सीखेंगे कि क्या रूल है. तो डेटा को आपको डेटाबेस में डालने से पहले, उसमें स्टोर करने से पहले, यू हैव टू ऑर्गेनाइज इट इन सम फैशन बाय अप्लाइंग सम रूल, ओके, सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड एंड मैनेज. बिकॉज अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है? I want to manage my database, my data. Okay, मैं उसको वहां से इंफॉर्मेशन निकाल पाऊँ. I should get some very good information about data. जैसे मान लो कि I am putting data for let's suppose sales data, ठीक है, कि Yes, sir. for this product कितना सेल्स हुआ था, right? Something like that, okay? सो उसको मुझे स्टोर करने के लिए कुछ वेज होगा, कुछ रूल्स होगा, उसको मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. ठीक है, सो डेटाबेस में जो डेटा होता है, इट्स अ ऑर्गेनाइज वे, उसको ऑर्गेनाइज करना होता है, एंड इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा, इट्स अ ह्यूज लॉट ऑफ डेटा. ओके, सो डेटाबेस इज जस्ट अ कंटेनर, उसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो, इट्स जस्ट अ कंटेनर टू होल्ड द डेटा, रियल डेटा. उसको कैसे होल्ड करते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द वे, वी विल लर्न दैट, बट इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा. ओके, are you getting it? I know it's a lot of theory now, practical start hoga, but in today class it will be more theory. नहीं, ये भी जानना जरूरी है. So you ready with, you understand what is database? If somebody asks Yes, you sir. what is database, so it's an organized collection of data. It's a collection of data, but in an organized way. Okay. For example, MySQL server. Okay, it's a database. Okay, so there are so many database vendors. Let's say MySQL, Sybase, Oracle, MongoDB. There are so many Informix, Postgres, SQL Server. बहुत सारे vendors हैं. These are called database vendors. ठीक है, तो they create, actually it's a software. इसको ऐसे assume कर सकते हो कि these are the softwares. जैसे Oracle, MySQL एक प्रकार का softwares है which hold the data. Oh, and these companies, Oracle is a company. Okay, Sybase is a company, and this company has developed the database. It's a very complicated software. Okay, so this helps you to hold the data, to store the data. Okay, so in this class I'm giving example of MySQL. So MySQL is an open source. Okay, ये जो MySQL open source है, and others are paid one. Even MongoDB is open source. You can use MongoDB. Postgres, there are a lot of open source database servers. Okay, so here in this class I will mostly use MySQL. Okay, and right now you are not going to understand कि database server कैसे manage करते हैं, वो काम आपका नहीं है. Okay, so you're going to learn SQL. Okay, but you have to understand you are dealing with the database servers. So these are the servers. Okay, and there are multiple types of database. ठीक है, so there are two types of database जो हम लोग इंडस्ट्री में, IT इंडस्ट्री में today we are the two types of database. One is called relational database, okay, and another is called NoSQL database or non-relational database. ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? Let me explain that. Okay, बोलो.
guys can go mute. Okay. So relational database, it is very powerful, very useful. Okay. So it's a kind of, उसको ऐसे समझ सकते हो, it's a kind of Excel. ठीक है. आप Excel में क्या करते हो? When you're creating the data and putting the data in Excel, you create some column, right? कि एक header होता है, ठीक है, एक rows होता है, right? So you create multiple columns and multiple rows in Excel, right? For example, जैसे ID एक कॉलम होगा, ठीक है, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, लेट्स सपोज इट्स एम्प्लॉय डेटा, ओके, और दिस डेटा यू वांट टू स्टोर इनटू एक्सेल. तो आप क्या करोगे? यू विल क्रिएट अ कॉलम, मल्टीपल कॉलम, ठीक है, एंड देयर विल बी मल्टीपल रोज. जैसे दिस आर मल्टीपल, जैसे 100 अजय, आईडी क्या है 100, नेम क्या है अजय, डिपार्टमेंट क्या है आईटी, सैलरी क्या है 20 के. सेकंड एम्प्लॉय क्या है आईडी 101, नेम है राहुल, department has sales, salary has 30, like this. Okay, so you might be you already familiar with this kind of structure, right? Anybody who are not familiar with this structure? This structure you are familiar in the Excel sheet. Yes, sir. You are creating Yes, this sir. way, right? So इस type, इसको बोलते हैं tabular form. The table is a kind of table, ठीक है. तो इस table को बोलते हैं, this is called vertically called column. इसको बोलते हैं column vertically, and horizontally को बोलते हैं Row. rows. ठीक है. तो these are the columns and the rows, multiple column and multiple rows. ओके. आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो विद द डिक्शनरी. ठीक है. डिक्शनरी में क्या होता है? वी हैव अ कीज एंड वैल्यूज, राइट, इन द पाइथन. Yes, sir. सो आईडी इज माय की, उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू है. नेम इज माय की, उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू है. सो यू कैन रिलेट विद द पाइथन डिक्शनरी एज वेल. अदरवाइज सिंपल है, यू कैन रिलेट विद द एक्सेल. आई थिंक एक्सेल सभी को आता है, राइट? एवरीबॉडी नोज अबाउट एक्सेल, राइट? Yes, sir. So this is just an Excel. Okay. So इसको बोलते हैं relational database. So you organize the data into tables. ठीक है. ये हमेशा टेबल के फॉर्मेट में होता है. ठीक है. तो टेबल में क्या होता है? एक कॉलम्स होगा, वर्टिकली कॉल्ड कॉलम एंड हॉरिजॉन्टली कॉल्ड रोज. ठीक है. तो इसमें रोज होंगे, इट कैन हैव मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स. ठीक है. एंड इसका इंडेक्सिंग होता है. जितने रोज है ना, दिस ऑल रोज, ठीक है, दिस ऑल रोज हैव सम यूनिक आईडी. डेटाबेस क्या करता है? बिकॉज इसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है. जैसे मान लो कि आई एम क्रिएटिंग फर्स्ट रो 100 अजय आईटी 20 के, ठीक है. तो इसका एक यूनिक आईडी होगा. यू नो व्हाट इज आईडी? जैसे मान लो कि दे आर 2 पर्सन्स, ठीक है. 2 पर्सन को आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्सन ये है, दिस पर्सन ये है. आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? हाउ विल यू आइडेंटिफाई 2 पर्सन? कुछ तो आईडी होगा. जैसे मान लो कि एक कंपनी में 2 एम्प्लॉय है, ठीक Yes, है. sir. By दो unique name. by unique name, by ID, or maybe by Board. आधार कार्ड, by पैन कार्ड. तो कुछ ना कुछ Yes. आईडी मुझे चाहिए. ठीक है. दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आईडी चाहिए. ठीक है. तो डेटाबेस क्या करता है कि अगर डेटाबेस इज क्रिएटिंग मल्टीपल रोज, आप मल्टीपल रोज बनाते हो लाइक दिस, ठीक है. तो ईच रोज का अपना एक आईडी होता है, ईच Yes, रोज sir. का. ठीक है. उसको रो नंबर बोलते हैं. तो ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इंडेक्स बनाते हैं. ठीक है. इंडेक्स बनाने से क्या होता है कि हमको इट हेल्प्स यू टू फाइंड द डेटा इजीली. ठीक है. और ईच रोज क्या यूनिक होता है? डेटाबेस, इट मीन्स द डेटाबेस, दिस ईच रोज आर यूनिक and they have some unique number. वो internal number होता है. You don't have to worry about that. That database take care of that. So जब आप multiple rows बनाओगे database में, we will see some example. It will the database manage its own ID, unique ID, ताकि each rows को differentiate कर पाए कि ये this is the row, this is the row. It happens internally. Okay. So these are the data which are in the format of table, rows and columns. Okay. And इसके पास it has a fixed schema and rule. ठीक है. सो व्हाट इज स्कीमा एंड रूल? इट फॉलो सम रूल्स. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल रूल है कि आईडी, ठीक है. सो दिस आईडी विल बी ओनली न्यूमेरिक टाइप. जब भी हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, जब वी हैव टू क्रिएट टेबल्स, ठीक है, हम लोग देखेंगे वी क्रिएट मल्टीपल टेबल्स इन द डेटाबेस. ठीक है. सो व्हाइल क्रिएटिंग द टेबल्स वी हैव टू डिफाइन द रूल कि जो आईडी में बना रहा हूं उसका टाइप क्या होगा, ये क्या स्टोर करेगा, ये ओनली न्यूमेरिक स्टोर करेगा. ठीक है. तो वैसा आपको पहले एक फिक्स रूल होता है. जैसे नेम है, so this name will store only numeric, only alphanumeric or some strings type of that. Okay. So salary है, so something each ID का each column का एक fixed rule होगा. It will follow some rule. It is just like a data type. ठीक है. जैसे आप Python में you create variable, right?
और हर एक वेरिएबल का अपना एक टाइप होता है कि क्या होल्ड करेगा, सो समथिंग लाइक दैट, ओके। सो एवरी कॉल्यूम हैज सम प्रीडिफाइंड रूल, वो रूल सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। जब आप टेबल क्रिएट करोगे, so while creating the table, you have to give some rule कि this is my column, okay, and this column is for this, and this column will hold only this kind of data. So that's इसको बोलते हैं fixed schema and fixed rule, okay. So relational database follows some fixed rule, और वो define करना पड़ता है। As a developer, जब आप table बनाओगे, we will see some example, you have to define the rule कि ये मेरा टेबल है, दिस इज माई टेबल, दिस इज माई रूल, दिस इज माई कॉलम्स, इस टेबल में इतने कॉलम होंगे और नंबर ऑफ कॉलम फिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने इसमें 4 कॉलम है, आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, ठीक है। तो अगर आपने एक बार टेबल बना दिया, ठीक है, तो ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको आप अल्टर कर सकते हो, मान लो आप नया कॉलम ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज नॉट डायनेमिक, ठीक है, ये डायनेमिक नहीं होता है, ठीक है। तो ये फिक्स होता है, दे हैव अ फिक्स रूल, ओके। सो रिलेशनल डेटाबेस फॉलो अ फिक्स रूल, and this is our job, जो developers होते हैं, they have the job to define the rule. ये rule आपको define करना पड़ेगा, this all words you have to define, ठीक है। ये rule कैसे define करते हैं, we will see that. इसके लिए syntax है, code है, इसके लिए command है, we will see how to define the rule, okay. Any doubt what is relational database? You are able to connect? So what did you learn so far? Can anyone tell me, can you explain me what is relational database? Who will explain me? Anyone want to explain? What is relational database? If I ask you कि मुझे समझाओ relational database क्या होता है? How you will explain me? Yes, go ahead. Who will explain me? सर ऑर्गेनाइज्ड डेटा को रोज एंड कॉलम्स में वो जो रिप्रेजेंट करते हैं, और ये यूनिक होता है सर, विथ यूनिक रोज आपको एंड बस ये कॉलम्स। बोलना है कि it's a tabular form, okay? It's a जी table. सर। It's a rows and column, and the data are stored in the tabular form, in the form of rows and columns, रोज and एंड it कॉलम्स। follows a fixed schema and rule, ठीक है। जी सर। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। it's a tabular format, it followed columns and rows, and it has a fixed rule, fixed schema. जी This सर। is about the relational database. Any doubt? सर लेमन लैंग्वेज में ये स्कीमा को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? स्कीमा मतलब रूल हो गया, स्कीमा का मतलब रूल, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक पर्सन है, ही इज रिटायर्ड, मान लो आर्मी मैन, ठीक है। तो आर्मी मैन का अपना बहुत ही हार्ड रूल होता है, हाँ, ठीक है। और एक सिंपल सा कैजुअल पर्सन है, ठीक है, उनका कोई रूल नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। यस। तो इसको ऐसे कर सकते हो कि उनका रूल है, मतलब वो इफ आप जब टेबल बनाओगे, इट विल फॉलो सम हार्ड रूल कि ये यही हो सकता है, वो उसका फिक्स स्कीमा फिक्स है, उसको बियॉन्ड अब उसको अवैल्यूएट नहीं कर सकते, उसको आप उसको तोड़ नहीं सकते, उसका एक फिक्स रूल है, यू हैव टू फॉलो दैट रूल। वो हम लोग करेंगे, वी विल सी सम प्रैक्टिकल, बट अभी के लिए जस्ट पुट इन योर माइंड कि रिलेशनल डेटाबेस फॉलो अ फिक्स रूल, फिक्स डिसिप्लिन, फिक्स रूल, फिक्स स्कीमा, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है। एनी डाउट गाइस? एनीवन डाउट हो, यू कैन क्लियर, ओके। मन में मत रखना कि यार, डोंट बी शाई, ओके, जस्ट ओपनली आस्क क्वेश्चंस। ओके, सो हम लोग अभी ओके, सो रिलेशनल डेटाबेस इज मोस्टली यूज इन द ट्रांजैक्शन, जैसे बैंकिंग का एप्लीकेशन है या इंश्योरेंस का एप्लीकेशन है, जहां भी बहुत ही क्रिटिकल ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है, वहां पर जनरली हम लोग वी फॉलो दिस टेबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जनरली जितने भी रियल टाइम एप्लीकेशंस होते हैं, ओके, एंड जहां ट्रांजैक्शन होता है, जैसे फाइनेंशियल जहां पर है, ठीक है, जहां पर बिकॉज उनको रूल फॉलो करना होता है, ठीक है। इनका बहुत सारा प्रॉपर्टी है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द वेरी डेप्थ, आप उतना आपको जरूरत नहीं है तो उतना डेप्थ जाने का, ठीक है। बस ये जान लो कि जितने भी फाइनेंशियल एप्लीकेशंस हैं, बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, इंश्योरेंस एप्लीकेशंस, जो बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, दे यूज रिलेशनल डेटाबेस बिकॉज इनका स्कीमा बहुत फिक्स होता है, ठीक है। एंड देयर आर मल्टीपल एडवांटेज ऑफ इट, आई विल नॉट टॉक अबाउट ऑल द एडवांटेज,
but these all applications use the relational database. Okay, and आपके लिए even for you have to learn more about relational. आपका जो करिकुलम है, जो आप जो सीखने जा रहे हो, that is your concern. Okay, that is your point. You have to learn more about relational database. तो आपका जो मेन काम होगा, आपका मेन काम ओनली आपका टेबल में होगा, ठीक है। आपको टेबल से डेटा निकालना है, फिच करना है, उसको प्रोसेस करना है, उसमें टेबल में फिर से डालना है। तो बस ये करना है, उसको बोलते हैं टेबल से निकालो, प्रोसेस करो, टेबल में डालो, बस आपको यही काम करना है, ठीक है। तो आपका सारा काम इसी में होगा, टेबल में होगा। एक डिफरेंट टाइप का डेटाबेस है, ठीक है। आपको हालांकि यू डोंट हैव टू लर्न दिस, ठीक है, बट अगेन आई एम गोइंग टू थोड़ा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। इट इज कॉल्ड द नॉन रिलेशनल डेटाबेस, नो सिक्वल डेटाबेस, जैसे कि मोंगोडीबी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इट इज अ नॉन टेबुलर फॉर्मेट। रिलेशनल में क्या होता है, इट्स अ टेबल फॉर्मेट, कि इसमें टेबल होगा, रोज होगा, कॉलम्स होगा, और एक फिक्स रोज होगा, फिक्स कॉलम्स होगा, सब कुछ फिक्स होगा, ठीक है। इसमें वैसा नहीं होता है, इट्स अ नॉन टेबुलर फॉर्मेट, ठीक है। और रिलेशन डेटाबेस से बहुत ही डिफरेंट होता है, इट्स वेरी डिफरेंट डेटाबेस। इसको बोलते हैं नो सिक्वल, ठीक है। नो सिक्वल इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये कोई स्कीमा फॉलो नहीं करता है, इसलिए बोलते हैं नो सिक्वल, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए इसके बहुत सारे वेराइटीज आते हैं, दे मल्टीपल फॉर्म ऑफ नो सिक्वल डेटाबेस, उतना आपको डेप्थ नहीं जाना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए की वैल्यू, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डेटाबेस, ठीक है, की वैल्यू, वाइड कॉलम एंड ग्राफ, ये मेन 4 तरह के डेटा टाइप होते हैं, नॉन सिक्वल टाइप के डेटाबेस होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट डेटाबेस, की वैल्यू, वाइड कॉलम एंड द ग्राफ डेटाबेस, ठीक है। इनका स्कीमा बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। एंड दिस काइंड ऑफ डेटाबेस इज वेरी गुड फॉर सोशल मीडिया काइंड ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि फेसबुक के लिए, फेसबुक यूज करता है ग्राफ डेटाबेस, यहाँ पर इट मैनेज द रिलेशनशिप, कि इसका ये फ्रेंड है, इसका ये फ्रेंड है, रिलेशनशिप मैनेज करना, तो ग्राफ डेटाबेस इज अ बेस्ट चॉइस, ठीक है। तो जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, रियल टाइम एप्लीकेशन है, जो स्ट्रीमिंग ज्यादा करता है, वो ज्यादा यूज करता है नॉन सिक्वल डेटाबेस, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर सिक्किम, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल फेसबुक, ठीक है। अब फेसबुक में आप देखते हो अपने यूआई में, यू कैन पुट एनीथिंग, आप कमेंट डालते हो, स्टिकी डालते हो, पुट द इमेज, वीडियो, वॉइस, आप कुछ भी डाल सकते हो, राइट। तो फेसबुक क्या करता है कि आप जो भी डेटा उसमें डाल रहे हो, कमेंट कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, फेसबुक उस डेटा को स्टोर करता है समवेयर, ठीक है। तो उसका फेसबुक का इट हैज ओन डेटाबेस बिहाइंड द सीन, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रूल फिक्स नहीं है, ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हो, इट कैन बी एनी लेंथ, बड़ा पोस्ट हो सकता है, स्मॉल पोस्ट, बड़ा पोस्ट, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे एप्लीकेशन के लिए यू कैन नॉट यूज रिलेशन डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे एप्लीकेशन में, सोशल मीडिया एप्लीकेशन में हम लोग जनरली यूज करते हैं नॉन सिक्वल डेटाबेस, ठीक है। आप इसका उतना डिटेल schema- नहीं, यू नॉट सीइंग माय स्क्रीन। सर इसमें स्कीमास एंड रूल्स नहीं होते हैं ना सर? हाँ, इसमें कोई स्कीमा रूल नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है, That ठीक है। can be changed any point of time. हाँ, ठीक है। तो अब आपको उतना पढ़ना नहीं है, उसको उतना डिटेल नहीं पढ़ना है, आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल। जैसे कुछ टाइप है, जैसे कि डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है, इसको बोलते हैं जेसन, ठीक है। तो ये जेसन के फॉर्मेट में होता है, हम लोग जो डेटा स्टोर करते हैं, इट्स ए फॉर्मेट ऑफ जेसन, ठीक है। तो एग्जांपल दिखाता हूँ, व्हाट इज जेसन, लेट मी शो। तो डेटा को स्टोर करने का देयर मल्टीपल वेज, ठीक है। जेसन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जेसन डेटा कैसे स्टोर करते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, यू डोंट हैव टू गो इन दैट डिटेल, ओके। यस सर। एक आपको आइडिया मिल जाएगा। ITF फाइल करते टाइम पे जेसन फाइल भी आता है ना? हाँ, yes। एक जेसन फाइल आपको दिखाता हूँ, एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। लेट मी सर्च जेसन एम्प्लॉय डेटा। So database is very vast area, okay? It has a lot of things to learn. उतना आपको नहीं learn करना है for your case. Okay, I'm sharing my screen. Can you see my screen? नो सर। No? Yes. Okay. You can see here, एक मैं डेटा दिखा रहा हूँ, ठीक है? It's a employee data. Let's suppose कि there are multiple employees, ठीक है? So employees का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? उसका यूजर आईडी हो सकता है, उसका जॉब टाइटल नेम, फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम, फुल नेम, एम्प्लॉय कोड हो सकता है, रीजन हो सकता है, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो मैं डेटा को स्टोर कर रहा हूँ, इट्स अ
इट्स नॉट अ टेबल फॉर्मेट, ये टेबल के फॉर्मेट में नहीं है, Non-SQL. ठीक है। इसको सेम डेटा को आई कैन स्टोर इन द टेबल फॉर्मेट, इसको मैं टेबल में कर सकता हूँ, मान लो कि एक्सेल में, ठीक है। अगर उसको एक्सेल में स्टोर करोगे तो आप कैसे करोगे, इस सबको कॉलम बनाओगे, जो आईडी का कॉलम होगा, नेम में कॉलम होगा, ठीक है, ये सारे कॉलम बनेगा, ये सारे और जितने वैल्यू सारे रोज बनेंगे, राइट, इन द टेबल फॉर्मेट। सो सेम चीज को जो एक्सेल में मैं स्टोर करता था, यहाँ मैं स्टोर कर रहा हूँ इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर टेबल में क्या है ना कि आपका नंबर ऑफ कॉलम फिक्स है, ठीक है। कि अगर मैंने मान लो मैंने बनाया यूजर आईडी, नेम, फर्स्ट नेम, ये सब मान लो कितने कॉलम है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मान लो कि आपने 9 कॉलम बनाया टेबल में, ठीक है, तो वो फिक्स हो गया, ठीक है। तो ओनली आप 9 कॉलम का डेटा को स्टोर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मान लो कि अभी मैं इसमें 9 ले रहा हूँ, इसमें मैं नया ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें 9 10 11 कुछ भी आ सकता है, तो उसका स्कीमा कोई फिक्स नहीं है, इट्स अ वेरिएबल, ठीक है, ये फिक्स नहीं है। तो इट्स अ काइंड ऑफ जेसन, इसको बोलते हैं जेसन फाइल, ठीक है। तो इसको में क्या होता है, जेसन क्या, इट्स एक, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट, ओके। और ये जनरली हम लोग कर्ली ब्रेसेस से ओपन होता है और कर्ली ब्रेसेस से क्लोज होता है, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर में कीज होता है, दीज आर द कीज एंड द वैल्यूज, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो बट दीज आर नॉट द रिलेशनल डेटाबेस। ये इसको स्टोर करने के लिए मुझे मोंगो डीबी यूज करना, अगर इस टाइप का डेटा को स्टोर करना है देन आई नीड टू यूज मोंगो डीबी। ये आपको माई सिक्वल में स्टोर नहीं होगा, ओरेकल में स्टोर नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ जेसन डेटा, Non-SQL. नो सिक्वल डेटा, ठीक है। उतना आपको डिटेल सर में जाना है। यस, एनी क्वेश्चन? इसको हम लोग सर रिलेशनल रिलेशनल में हम लोग रख सकते हैं सर हाँ, इसको। रख सकते हो, यू कैन कन्वर्ट इनटू रिलेशनल, बट वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी इसमें 9 कॉलम है, ठीक है। मान लो कि एक नया डॉक्यूमेंट आया, ठीक है। मान लो कि दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, यस सर। इसको बोलते हैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट यूजर का डिटेल है, ठीक है। मान लो कि सेकंड डॉक्यूमेंट आया, सेकंड का डिटेल आया, ठीक है। और सेकंड यूजर के लिए मुझे एक नया फील्ड मिल गया, मान लो कि लेट्स सपोज एड्रेस एड्रेस और हस्बैंड नेम, वाइफ नेम, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो यस सर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट डॉक्यूमेंट का इतना था, ओनली 9 डिटेल था, ठीक है। सेकंड Yes. डॉक्यूमेंट का, सेकंड एम्प्लॉय का मुझे न्यू डिटेल मिल सकता है, आई कैन गेट द न्यू डिटेल, Oh, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो दिस काइंड ऑफ डेटा आपको मोंगो में आराम से स्टोर कर सकते हो। लेकिन दिस काइंड ऑफ डेटा जो वेरिएबल, जो वेरी कर सकता है, जो आपका नंबर ऑफ जो प्रॉपर्टीज है, नंबर ऑफ आइटम्स है, वो वेरी कर रहा है, वो कॉलम में, वो टेबल में फिट नहीं हो पाएगा, बिकॉज टेबल में आपने फिक्स कर दिया ना कि मेरे पास इतना ही कॉलम है, मेरे पास ओनली 9 कॉलम्स है, ठीक है। तो मैं एक्स्ट्रा कॉलम नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो वो फिक्स हो गया, बिकॉज उसका स्कीमा फिक्स है। बट यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए, फर्स्ट यूजर के लिए इतना डिटेल था, 9 डिटेल था। सेकेंड के लिए आपको 20 डिटेल मिल सकता है, थर्ड के लिए आपको 40 डिटेल मिल सकता है। तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है even कि आई विल गेट ओनली नंबर ऑफ दिस डिटेल्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑफ नॉन सिक्वल और नॉट फिक्स स्कीमा, ठीक है। yes sir. आई होप यू नॉट अवेल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्कीमा। Yes sir. So, इसका कोई स्कीमा फिक्स नहीं है, ठीक है। तो हाँ, तो अगर आप इसको चाहते हो कि मैं इसको रिलेशनल में स्टोर करूँ, तो आपको स्कीमा फिक्स करना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं इतना ही आईडी ले सकता हूँ, मैं इतना ही प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं ले नहीं रख सकता। आई कैन नॉट टेक मोर देन दैट प्रॉपर्टी, सो यू हैव टू फिक्स इट फर्स्ट, ठीक है। Yes ओके, सर, बट हम लोग एसक्यूएल में सर, सीक्वल में हम लोग सर उसमें रिलेशनल यूज करेंगे ना वो। हाँ, सिक्वल इज फॉर रिलेशनल, यस। आप जो सीखने जा रहे हो सिक्वल इज ओनली वर्क फॉर रिलेशनल डेटाबेस, यस ठीक है। इसके लिए अलग से काम करना, अगर नॉन सिक्वल, अगर नो सिक्वल डेटाबेस है, तो वहां से डेटा कैसे पुल करना है, सिक्वल काम नहीं करेगा, यस सर। ओके। सिक्वल ओनली फॉर रिलेशनल डेटाबेस, इसका अलग क्लाइंट होता है, वो अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। तो आपको इसको स्टडी नहीं करना, डोंट वरी, आई एम जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन, ओके। यू डोंट हैव टू लर्न दिस नो सिक्वल डेटाबेस, ओके सर। सो यू हैव टू लर्न ओनली सिक्वल टेबल। आपको बस टेबल में काम करना है, सारा काम आपको टेबल में करना है, ठीक है। सो देयर सम एग्जांपल, यस, एनी मोर क्वेश्चंस? सर ये जो बताएं बस वो इंफॉर्मेशन के लिए बताएं, नॉन ये आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ टू जस्ट बिल्ड द कॉन्सेप्ट,
ठीक है, आपको रियल काम इस पर नहीं करना है, ठीक है, ओके आपको नो सिक्वल पर रियल काम नहीं करना है। अगर काम करना भी होगा, मान लो प्रोजेक्ट में होगा भी, तो पहले नॉन सिक्वल को पहले सिक्वल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको टेबुलर फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्जन करना होगा, ठीक है, वो डेटा इंजीनियरिंग करेंगे, तब आपको जाके आप सिक्वल से भी यूज करोगे, ठीक है। यस सर। तो डॉक्यूमेंट का एग्जांपल है MongoDB, ठीक है। की वैल्यू डेटाबेस होता है, उसमें की एंड वैल्यू होता है। रेडिस उसका एग्जांपल है, एक ये भी डेटाबेस है, ठीक है। वाइड कॉलम स्टोर होता है, इसका एग्जांपल है कैसेंड्रा, अमेजन का DynamoDB, अपाचे का HBase, बिग टेबल, दिस इज द गूगल प्रोडक्ट, बिग टेबल इज एग्जांपल ऑफ वाइड कॉलम स्टोर। एंड सर ये ग्राफ डेटाबेस, ठीक है, ग्राफ डेटाबेस में इंफॉर्मेशन, दिस इज वेरी गुड फॉर रिलेशन मैनेज, कि ये मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड का फ्रेंड, फ्रेंड का फ्रेंड, ठीक है। जैसे ये जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक यूज करता है ग्राफ डेटाबेस, अपना जो भी अच्छा रिलेशनशिप मैनेज करना होता है। तो बहुत सारे डेटा, देयर लॉट ऑफ डेटाबेस, ओके। सो यू डोंट हैव टू लर्न दिस ऑल थिंग, आपको नॉट सिक्वल फोकस नहीं करना, बस आई एम गिविंग सम इंफॉर्मेशन, ओके। नाउ कम टू सिक्वल, ठीक है। सो सिक्वल क्या, व्हाट इज सिक्वल? Okay, see, database is another thing, okay, database servers, let me go back there 1 second, फिर मैं SQL समझाता हूँ, आप SQL क्यों सीख रहे हो, what is so important, okay। Okay, so I'm coming to my whiteboard, okay। So देखो, आपके पास एक database servers है, ठीक है, and let's imagine it's a relational database, okay, I'm not talking about NoSQL, it's a SQL database, okay, it's a table format, okay। तो डेटा यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, एंड इट कैन बी एनी वेंडर, इट कैन बी ऑरेकल, इट कैन बी साइबेस, इट कैन बी MySQL, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी DB2, इट कैन बी मल्टीपल वेंडर्स, ठीक है। और हर एक वेंडर्स का अपना डिफरेंट वे है टू वर्क, टू मैनेज द डेटाबेस, इट्स अ डिफरेंट वे, ओके। बट हियर we need a, let's suppose कि मुझे I need to pull the data, ठीक है, from these servers, I need to pull the data, ठीक है। तो डेटा को पुल करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए मुझे एक लैंग्वेज चाहिए, बिकॉज सीधी ज्यादा सर्वर्स, ठीक है। तो सर्वर से कनेक्ट करना है, वहां से डेटा पुल करना है, नीड टू प्रोसेस द डेटा, सो वी नीड सम प्रोटोकॉल, ओके, वी नीड सम वे सो दैट आई कैन कनेक्ट टू डेटाबेस, ठीक है, और वहां से मैं डेटा पुल कर पाऊं, ठीक है। तो उसके लिए वी हैव डेवलप्ड सिक्वल, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। सो इट्स अ काइंड ऑफ लैंग्वेज, just like a Python, C, Java, just you can just relate with that. So SQL भी एक प्रकार का लैंग्वेज है, ठीक है, एंड दिस लैंग्वेज आर यूज्ड टू टॉक टू डेटाबेस। ये क्या करता है, डेटाबेस से इंटरैक्ट करता है। It can be, so SQL can interact with all the database. It can be Oracle, it can be Sybase, MySQL, DB2। आपका वेंडर्स अलग हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी डिफरेंट वेंडर्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि दिस इज Oracle, let's suppose this is Oracle database, okay, let's suppose this is MySQL database, so vendor can be anyone, it can be different vendors, ठीक है, लेकिन आपका लैंग्वेज सेम रहेगा, you don't have to worry about the vendors, ठीक है। तो same SQL can connect to Oracle and same SQL can connect to MySQL or any different vendors, ठीक है, बिकॉज इट्स अ यूनिफॉर्म लैंग्वेज, ठीक है, इसको वेंडर से मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपका एक ही कॉमन इंटरफेस है, कॉमन लैंग्वेज है, इट कैन कनेक्ट टू ऑल द वेंडर्स। थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं सम वे समहाउ वी मेक सम चेंजेस इन द सिंटेक्स, कुछ कुछ कोड ऐसा होता है जो ओरेकल पे काम करता है, कुछ ओनली MySQL पे काम करता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं वेरिएंस आता है सिक्वल के कोड में, सिंटेक्स में थोड़ा कहीं कहीं चेंज आता है, बट 99% सिंटेक्स विल रिमेन सेम, वो सभी के लिए काम करता है, इवन फॉर Oracle, इवन फॉर MySQL, बट कहीं कहीं वेरिएशन आता है, ठीक है। सो हियर यू आर गोइंग टू लर्न द SQL structure query language so that you can interact with any database servers, you can pull the data and you can process the data. This is clear कि why you are going to learn SQL? यस सर। सर इसको स्टॉकिस्ट बोल सकते हैं क्या? Sorry, इसको स्टॉकिस्ट बोल सकते हैं क्या? stockist ये तो स्टॉक रखता है वो, एक मतलब नहीं, स्टॉक नहीं रखता है, वो लैंग्वेज है, वो इंटरेक्ट करता है डेटाबेस के साथ, बात करता है, कम्युनिकेट करता है।
Sir, MySQL is a database MySQL is a database server, ठीक है, server, and and SQL is SQL is not a database server, ये language है, a language. it's a language, just like a Java, C, Python, एक language है, structure इसको बोलते हैं structure query language. Okay, sir. SQL stands for structured query language, ये server नहीं है, a lot of people get confused, okay. SQL is a tool or language to connect with their database servers. तो Oracle server है, MySQL server है, these are the server, these are the real database servers. database server ठीक है, SQL is not a server, it's a language. which provide the data. ये क्या करता है, SQL will connect with the database. Okay. ठीक है, database में help करता है. हाँ, तो here you are going to learn how to write the code, syntax कैसे लिखना है SQL का, so that you can connect with database, you can pull the data create कर पाओ, ठीक है. तो वो database क्या कर रहा है, it is holding the data, वो data को hold कर रहा है, it's a container, ठीक है. अब उस container में से मुझे data निकालना है, I want to pull the data, I want to fetch the data, I want to process data, और data को वापस फिर से उसमें डालना है. तो SQL आपको काम करता है दोनों करने में, pull करने में भी करता है, fetch करता है और insert भी करता है. Yes, sir. It worked in two ways, back and forth. आप डेटा को वहां से निकाल सकते हो और निकालने के बाद प्रोसेस करने के बाद डेटा को फिर से इसमें डाल सकते हो. सो दैट्स द पर्पस ऑफ SQL. क्लियर? और ये काम करता ओनली विद द रिलेशनल डेटाबेस. SQL इज ओनली वर्क विद रिलेशनल डेटाबेस. ये मोंगो के साथ काम नहीं करेगा, कैसेंड्रा के साथ काम नहीं करेगा. इट ओनली वर्क विद द रिलेशनल डेटाबेस. जहां टेबल का फॉर्मेट है उसमें काम करता है, ठीक है. तो SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डिजाइन ओनली फॉर मैनिपुलेट द डेटा इन द रिलेशनल डेटाबेस. ये डिजाइन किया गया ओनली फॉर रिलेशनल, ओनली फॉर टेबल के साथ, ठीक है. एंड SQL इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन टू मैनेज डेटा स्टोर इन द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, ओनली रिलेशनल. दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन? Yes. ठीक है. ओके, सो आप यू आर गोइंग टू लर्न अ लैंग्वेज, ठीक है. इसका अपना सिंटेक्स है, कैसे कैसे वर्क करते हैं, इसका अपना कोडिंग है, अपना सिंटेक्स है. सो दैट्स व्हाट आई गोइंग टू लर्न इन मीन टाइम. ओके, Yes, sir. तो हम लोग अब नाउ वी आर गोइंग टू मोर टॉक अबाउट SQL. तो आपको सीखना SQL है, ठीक है. अभी जितना मैंने बात किया दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट, ये एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर सब कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन मेन फोकस आपका SQL है. ओके, अब SQL में क्या क्या है, दैट्स व्हाट यू गोइंग टू लर्न नाउ, ठीक है. SQL में 3 तरह का लैंग्वेज है, तो इसको अगर क्लासिफाई करो कि इसमें 3 तरह का लैंग्वेज होते हैं, ठीक है. सो SQL कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स. इसको बोलते हैं DDL, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है. तो आपको ये 3 तरह का लैंग्वेज, मतलब उसको ऐसे क्लासिफाई किया गया है कि SQL को हम लोग 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है. इन टर्म्स ऑफ सिंटेक्स, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजिंग, ठीक है. वन इन शॉर्ट वी कॉल DDL, इसको डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज को शॉर्ट में बोलते हैं DDL, डेटा मैनिपुलेशन को बोलते हैं DML और डेटा कंट्रोल को बोलते हैं DCL. तो DDL, DML और DCL, ये 3 तरह का लैंग्वेज है जो SQL कंसिस्ट ऑफ, ठीक है. तो दिस शुड बी, आपको इसको मेमोराइज करना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, सो डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DDL, DML, DCL. क्लियर? Yes, sir. ओके, अब DDL क्या करता है, इसका पर्पस क्या है? इट इज कॉल्ड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है. ये क्या करता है, ये डेटा क्रिएट करता है. इसको क्रिएट, मान लो कि आपको लेट्स सपोज डेटाबेस में आपको डेटा क्रिएट करना है, मान लो एम्प्लॉय डेटा, सेल्स डेटा, ठीक है. डेटा को बनाना है, डेटा को क्रिएट करना है, ठीक है. तो उसको डिफाइन करना है, ठीक है. तो उसके लिए हम लोग DDL यूज करते हैं. जैसे कि क्रिएट, ये क्रिएट एक सिंटेक्स है, हम लोग सीखेंगे, ठीक है. क्रिएट करना, अल्टर करना, ठीक है. सो क्रिएट इज अ काइंड ऑफ DDL लैंग्वेज. जो सिंटेक्स चेंज करना है सर. हाँ, नहीं, हाँ, उसको डिफाइन कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो. तो आप टेबल यहाँ बना रहे हो, ठीक है. मतलब आप यहाँ पर स्कीमा बना रहे हो, ठीक है. विद द हेल्प ऑफ DDL आप स्कीमा डिफाइन कर रहे हो कि क्या टेबल होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, ठीक है. और बनाने के बाद उसको अल्टर भी कर सकते हो. टेबल बनाने के बाद यू कैन अल्टर, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है. तो आप क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो. सो क्रिएट एंड अल्टर इज अ पार्ट ऑफ DDL. ये कभी कभी इंटरव्यू पूछता है, ठीक है, कि व्हाट इज डेटा डिफरेंस लैंग्वेज. सो डेटा डिफरेंस लैंग्वेज डील विद द स्कीमा क्रिएशन एंड द मॉडिफिकेशन. ये स्कीमा बनाता है, द टेबल क्रिएट करता है और मॉडिफाई करता है. सो क्रिएट टेबल स्टेटमेंट, एक क्रिएट टेबल क्या करता है, इट अलाउज यू टू क्रिएट अ न्यू टेबल.
आप डेटाबेस में न्यू टेबल बनाते हो, ठीक है। तो वो डेटाबेस में जो जितने डेटा होते हैं, दे ऑल इन द फॉर्मेट ऑफ टेबल। आपको टेबल बनाना पड़ेगा। अगर मान लो एम्प्लॉय का डेटा आपको स्टोर करना है, आपको एक एम्प्लॉय टेबल बनाना पड़ेगा। आपको सेल्स का डेटा स्टोर करना, आपको सेल्स का, यू हैव टू क्रिएट अ टेबल। सो एवरीथिंग इज अ टेबल, ठीक है। वो टेबल कैसे बनाते हैं, वी विल लर्न दैट, बट एवरीथिंग इज अ टेबल। सब कुछ आपको टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक डेटाबेस के अंदर इट कैन हैव मल्टीपल टेबल्स, 20, 30, 40, 50, मतलब कोई लिमिट नहीं है। यू कैन गो 100, 200 टेबल्स। और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में इट हैज 300, 400, 500 टेबल्स भी होते हैं इन वन डेटाबेस, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होते हैं। सो यू हैव टू डील विद मल्टीपल टेबल्स। तो कभी कभी टेबल, एक डेटा एक टेबल में होता है, कभी कभी इट कैन स्पैन टू मल्टीपल टेबल्स, ठीक है। तो डेटा आपको मल्टीपल टेबल से निकालना पड़ता है, ठीक है। टेबल डेटा एक ही टेबल में नहीं होता, इट इज अक्रॉस मल्टीपल टेबल्स। तो आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे मैं डेटा आई कैन पुल फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। दैट्स व्हाट यू गोइंग टू लर्न, ठीक है। वो सिक्वल आपको हेल्प करेगा कि आपको टेबल से डेटा निकालना है, मल्टीपल डेटा है, मल्टीपल टेबल्स है, वहां से डेटा को मुझे पुल करना है। दैट यू कैन लर्न, ओके। सो बट डीडीएल क्या करता है, ये करता है ओनली क्रिएशन पार्ट में। आप डेटा को क्रिएट कर सकते हो और उसको मॉडिफाई कर सकते हो। दैट इज द पर्पस ऑफ डीडीएल। एनी कंफ्यूजन इन डीडीएल? नो सर। सबको घुस गया दिमाग में? एवरीवन गॉट दिस, व्हाट इज डीडीएल? और इसे डिलीट करना हो तो, डिलीट करना फॉर है एग्जांपल तो अगर हमें कोई, अगर फॉर मैनिपुलेशन, एग्जांपल, हाँ, वो हाँ जी, मैनिपुलेशन में जाएगा, डीमेल में अच्छा वो जाएगा, मैनिपुलेशन, ठीक है सर। ठीक है। डीडीएल में ओनली क्रिएट करना है, क्रिएट एंड अल्टर, क्रिएट एंड अल्टर। ठीक है। कुछ चेंज ठीक, करना है तो मैनिपुलेट, तो दिस इज काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, ठीक है। तो अगर हाँ कुछ जी डेटा सर। चेंज करना है, देन वी यूज डीएमएल, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें इंसर्ट आता है, अपडेट आता है, डिलीट आता है, सेलेक्ट आता है। सो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज प्रोवाइड द कंस्ट्रक्ट्स टू क्वेरी द डेटा, मतलब डेटा को आप क्वेरी भी कर सकते हो, ठीक है, डेटा को वहां से पुल कर सकते हो। और अपडेट द डेटा, डेटा को अपडेट, वैसे इंसर्ट, नया डेटा मान लो आपको डालना है, अपडेट करना है, डेटा को डिलीट करना है, ठीक है। तो आपको ये सब, these are the कमांड। इंसर्ट एक कमांड है, ठीक है, हम सीखेंगे बाद में। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, दीज आर द सिक्वल कमांड, ठीक है। और ये सारे कमांड्स आते हैं अंदर डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आते हैं, ठीक है। तो डीएमएल के अंदर क्या क्या आते हैं, यू हैव टू रिमेंबर। सेलेक्ट आता है, मतलब जहां पे डेटा को मैनिपुलेट करना है। जैसे इंसर्ट क्या करता है, इट इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट द डेटा, राइट। तो जहां पे डेटा को चेंज करना है, मैनिपुलेट करना है, वहां पर हम लोग यूज करेंगे डीएमएल। इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, डिलीट। ठीक है। इवन सेलेक्ट को भी हम लोग रखे हैं डीएमएल के अंदर, ठीक है। सर इन केस ऑफ अल्टर सर अल्टर एंड टेबल, हाँ, अल्टर, ठीक है। डिलीट सर, डिफरेंस फिर? अल्टर क्या करता है, टेबल का स्ट्रक्चर अल्टर करता है। जैसे मान लो कि ओ आपको मीन्स, एक नया कॉलम ऐड करना है, ठीक है। आपने 5 कॉलम बनाया है, यू वांट टू ऐड न्यू कॉलम। तो अल्टर, मैं टेबल को अल्टर कर रहा हूँ। मैं अल्टर का मतलब समझो कि ऐसा है कि आपने घर बनाया, ठीक है, आपने बिल्डिंग बनाया, ठीक है। तो बिल्डिंग का थोड़ा स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सा रीडिजाइन करना है, थोड़ा सा चेंज करना है, तो अल्टर कर रहे हो आप, ठीक है। यस सर। तो अल्टर का मतलब होता है पूरा स्ट्रक्चर को आप चेंज, टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अल्टर, ठीक है। यस सर। और अपडेट होता है सर कि आप जो रोज है ना, जो रोज है, जो डेटा है रोज, आप रोज को अपडेट कर रहे हो। अपडेट रोज को अपडेट करता है। जो आप रोज बनाओगे, जो आप डेटा डालोगे, वो रियल डेटा को अपडेट करता है। अल्टर टेबल को अपडेट करता है, ठीक है। और अपडेट रियल डेटा को अपडेट करता है, रोज को, ठीक है। डिलीट क्या करता है, रोज को डिलीट करता है। इंसर्ट क्या करता है, न्यू रोज बनाता है, इट क्रिएट न्यू रोज। सर कॉलम पे भी नहीं कर सकते क्या? सॉरी, कॉलम पे भी होता है क्या? नहीं नहीं, जैसे कॉलम तो अपडेट। फिक्स हो गया ना। कॉलम को आप कॉलम को अपडेट कर सकते हो, तो उसके लिए आपको अल्टर करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा। ठीक है। मान लो कि आपने कॉलम का आईडी रखा है, टाइप रखा है इंटीजर टाइप का, मान लो उसको आपको चेंज करना, उसको बनाना चाहते हो स्ट्रिंग टाइप का, तो बाद में यस उसको अल्टर कर सकते हो, ठीक है। टेबल को बनाने के बाद उसके स्कीमा को हम अल्टर कर सकते हैं, लेकिन एक बार जो बन गया, फिक्स हो गया। यस। मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा। ऑन द फ्लाई चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको उसको रीडिजाइन करना पड़ेगा। यस सर। तो अल्टर का मतलब होता है कि आप टेबल को चेंज कर रहे हो, यस सर। ठीक है। टेबल और में भी नया कॉलम ऐड कर रहे हो, कॉलम को आप चेंज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अल्टर। मैनिपुलेशन इट मींस कि रोज में हम लोग काम हाँ, मतलब आप डेटा में खेल रहे हो, करते हैं। ठीक यस है। सर। यहाँ आप डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो, डेटा को,
ठीक है, रोज को आप मैनिपुलेट कर रहे हो। क्लियर? यस सर। दिस इज कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एक होता है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो जनरली आप लोग नहीं करोगे, ये ज्यादा जो एडमिन होते हैं, जो डेटाबेस के एडमिन होते हैं, DBA होते हैं, वो ज्यादा काम करते हैं DCL। ठीक है, ये करते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये कंट्रोल करते हैं कि ये कौन सा यूजर इसको यूज करेगा। ठीक है, मैं कुछ सिक्योरिटी है, कोई यूजर को ऑथोराइजेशन करना है, कि ग्रांट परमिशन देना है। ग्रांट का मतलब होता है कि मान लो कि कोई डेटाबेस सर्वर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर यूजर को परमिशन दे सकता हूँ कि ओनली दिस यूजर कैन इंसर्ट द डेटा। यस। ठीक है, तो या इसे कॉन्सेप्ट ऑफ यूजर्स। ठीक है, सो डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा था कल, यू क्रिएटेड वन यूजर रूट, रिमेंबर? यस। कल Yes. हमने एक वी क्रिएटेड वन पासवर्ड, रूट पासवर्ड। तो रूट क्या है? रूट इज अ यूजर। ठीक है, वो डेटाबेस के अंदर एक यूजर है रूट। अगर आप चाहो तो यू कैन क्रिएट मल्टीपल यूजर्स। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि इन प्रोजेक्ट में वी क्रिएट मल्टीपल यूजर्स इन द डेटाबेस। ठीक है, और हर एक यूजर का अपना एक परमिशन दिया हुआ है कि ये यूजर बस यही काम कर सकता है। And some user can only insert, some user only, not all user can update the table, because टेबल को अपडेट करना बहुत ही रिस्की काम होता है। ठीक है, तो उसका एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो ओनली दोज पीपल कैन अपडेट द टेबल। जनरली डेवलपर्स हैव नो परमिशन टू अपडेट द टेबल। जो अल्टर कमांड है ना, ये जनरली डेवलपर्स नहीं करते हैं। ठीक है, जनरली जो एडमिन्स होते हैं, ठीक है, उनके पास प्रिविलेज होता है, उनके पास स्पेशल आई कैन से रूल्स और पावर होता है, प्रिविलेज होता है, दे कैन चेंज द स्ट्रक्चर। ठीक है, और उनको ग्रांट कर सकते हैं किस यूजर को क्या कर सकते हो, कौन सा यूजर क्या ऐड कर सकता है, क्या डिलीट कर सकता है, वो एक ग्रांट, परमिशन ग्रांट करते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं DCL, डेटा को कंट्रोल, मतलब कौन डेटा को कौन कंट्रोल कर सकता है, वो यहाँ से ही हम लोग उसको मैनेज करते हैं। तो ग्रांट है, रिवोक है, दो स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जनरली आपको डील नहीं करता, जनरली डेवलपर्स नहीं करते हैं सर काम। इसके लिए एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल होता है, इसको एडमिन बोलते हैं, दे मैनेज दिस थिंग्स। यस सर। ठीक है, तो आपको जनरली आप क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे, इंसर्ट करोगे, अपडेट करोगे, डिलीट करोगे। ठीक है, क्रिएट टेबल भी कर सकते हो। जनरली टेबल क्रिएट भी, लेकिन अल्टर टेबल जनरली हम लोग नहीं करते हैं, क्रिएट टेबल आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपका मेन काम होगा DML में। ठीक है, यू हैव टू मेन फोकस ऑन द DML पार्ट। सेलेक्ट करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, दिस इज द मेन पार्ट फॉर यू। क्लियर? यस सर। ओके Yes. guys, you are getting me right? Overwhelmed तो नहीं हो रहा ना? You are okay with that? Are you able to understand this whole thing? I know it's a first time. We are understanding, sir. You're understanding, right? Right. Okay. Okay, so now I'm going to start with SQL syntax. ठीक है, हालांकि we have to इसको हम लोग बहुत ही डेप्थ में जाना है, but I'm giving some idea right now. Okay, I'm not going to describe in detail right now, but I'm just giving the overview right now. Okay, so SQL is a declarative language. इसमें क्या होता है? Okay, SQL और Python में different है। ठीक है, other language like Python, C, Java, okay, उसमें क्या होता है? We build the logic. ठीक है, उसमें बहुत प्रोसेसिंग होता है, इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, SQL इज नॉट लाइक अ टिपिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब आप देखोगे अभी कुछ देर में, इसको क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं। इट इज मोर लाइक इंग्लिश टाइप का सिंटेक्स होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सो इट इज नॉट अ टिपिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि SQL है, पाइथन है। तो पाइथन इज मोर लाइक अ प्रोग्रामिंग, जहां ज्यादा प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। यहाँ उतना प्रोग्रामिंग नहीं करते, यहाँ डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो इट इज मोर लाइक अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। इसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल होता है, इट्स लाइक अ नेचुरल लैंग्वेज। ओके, एंड जनरली ये स्टार्ट कैसे होता है? एक वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे सेलेक्ट करना, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ठीक है, एंड उसके बाद वी विल सी द सिंटेक्स। ठीक है, तो जनरली ये सेलेक्ट से, इन सब से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कि यहाँ एक, डोंट वरी अबाउट द सिंटेक्स राइट नाउ, इसको हम लोग ऑल डिकोड करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग द ओवरव्यू राइट नाउ। ठीक है, कि आपको आगे क्या दिखने वाला है। ठीक है, सो डोंट वरी। ओके, इसको हम लोग सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लो कि एक एम्प्लॉय टेबल है, जस्ट इमेजिन। ओके, जस्ट इमेजिन राइट नाउ कि देयर इज अ एम्प्लॉय टेबल, एंड एम्प्लॉय टेबल के अंदर देयर आर मल्टीपल कॉलम, जैसे फर्स्ट नेम, डेट, हायरिंग डेट। ठीक है, मान लो कि मुझे उस टेबल में से आई वांट टू पुल ओनली दोज डेटा, फर्स्ट नेम, जिनका हायरिंग डेट 2000 है। जो 2000 में जो हायर हुए हैं, जो ज्वाइन किए हैं एम्प्लॉय, उनका मुझे डेटा चाहिए।
ठीक है, जस्ट इमेजिन, ओके, कि दे आर लॉट ऑफ एम्प्लॉयज इन द टेबल इन द रिकॉर्ड, एंड जो एम्प्लॉय 2000 में 2000 में हायर हुए हैं, ज्वाइन किए, उनका ओनली मुझे डेटा चाहिए। तो उसको कैसे करेंगे? सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट का मतलब कि मुझे क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, ठीक है, तो आई वांट फर्स्ट नेम, सो सेलेक्ट फर्स्ट नेम, ठीक है। अब कहां से, आपको डेटा कहां से लेना है? तो टेबल चाहिए मुझे, तो सेलेक्ट दिस थिंग फ्रॉम, कहां से चाहिए आपको टेबल? तो फ्रॉम में टेबल का नाम देते हैं कि आई वांट फ्रॉम दिस टेबल, ठीक है। पूरे टेबल। तो सेलेक्ट दिस थिंग, आई वांट दिस थिंग फ्रॉम दिस टेबल। और यहाँ पर आपका कुछ कंडीशन है क्या, कि आपको डेटा कैसे चाहिए, ठीक है, आपको क्या, किस प्रकार का डेटा चाहिए? तो यहाँ मुझे वही ओनली, आई वांट ओनली दोज डेटा जिसका हायरिंग डेट 2000 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंडीशन बिल्ड कर रहे हो, yes, यू पुटिंग सम कंडीशन कि आई वांट ओनली दोज डेटा जिनका हायरिंग डेट इतना है, ठीक है। तो एक इसको बोलते हैं सेलेक्ट क्लाउज, सेलेक्ट दिस फ्रॉम व्हाट एंड वेयर। तो सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये आपको बस, दिस इज अ स्ट्रक्चर, दिस इज द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिक्वल, ठीक है। और इसको क्लोज करते हैं बाय सेमीकोलन, या सेमीकोलन देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू यूज सेमीकोलन टू मार्क द एंड ऑफ द कमांड, मतलब यहाँ पर ये कमांड एंड हो गया, ठीक है। आप चाहो तो सभी को एक लाइन में लिख सकते हो, या यू कैन यूज मल्टीपल लाइंस, नो प्रॉब्लम, दिस इज अप टू यू, बट इट शुड बी एंड विद द सेमीकोलन, ये मस्ट है, अदरवाइज ये एंड नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द कमांड टू पुल द डेटा, ये डेटा पुल हो रहा है, डेटा फेच हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या फेच कर रहा है? इट इज फेचिंग द फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हु हैज ज्वाइन ऑन 2000, ठीक है। You got this? So this is the syntax. yes, इसको मैं all decode करूंगा, we will practice on this, but just now I'm giving the idea overview, ठीक है। So select this, I want this, select this from table and Table. where, ये टेबल का नाम है, this is a table name, employees, particular year, हाँ, ठीक है। So this is the basic syntax of SQL, ये बहुत ही basic है। Any confusion in understanding this SQL, this syntax? no sir, नो सर। ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इन अपकमिंग क्लास, ओके। सो यहाँ पर देखो, इसको बोलते हैं क्लाउज, सेलेक्ट क्लाउज, ठीक है। सो जनरली क्या होता है, सेलेक्ट, आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी, दीज आर द कॉलम्स। table, तो सेलेक्ट में हम लोग कॉलम देते हैं, ठीक है, कौन सा कॉलम आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा प्रॉपर्टी आपको चाहिए, ठीक है। तो सेलेक्ट इज कॉल्ड सेलेक्ट क्लाउज, एंड आप सेलेक्ट कर लिए, अब कहाँ से, फ्रॉम वेयर, तो इसको बोलते हैं फ्रॉम क्लाउज, ठीक है। अब फ्रॉम में हम लोग देते हैं डेटाबेस का नेम, टेबल, सॉरी टेबल का, नॉट डेटाबेस, टेबल का नेम, where ठीक है। close, सेलेक्ट में देते हैं कॉलम, आपको कौन सा कॉलम चाहिए, कौन सा प्रॉपर्टी चाहिए, फ्रॉम विच टेबल चाहिए, इसको बोलते हैं फ्रॉम क्लाउज, ठीक है। एंड वेयर, आप क्या कंडीशन लगा रहे हो, आपको डेटा तो बहुत सारा है yes, sir. टेबल में, इट्स लॉट ऑफ डेटा, ओके, लेकिन आपको कौन सा पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो आपको एक कंडीशन बिल्ड करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं प्रेडिकेट, ठीक है, वेयर क्लाउज, ठीक है। तो आप जो कंडीशन यहाँ बिल्ड करोगे, आपको वही डेटा मिलेगा। सर कंडीशन बिल्ट में सर डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है ना? हाँ, कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि आपको किस प्रकार का डेटा चाहिए, उस पर डिपेंड करता है, यस सर, या ठीक है। एज वाइज, पर्टिकुलर एज वाइज भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, एज वाइज, सैलरी वाइज, मुझे ओनली दोज एम्प्लॉय चाहिए जिसका सैलरी 1 लाख से ज्यादा है, मोर देन 1 लाख है, तो कंडीशन यहाँ बिल्ड करना पड़ेगा, उस सैलरी इज मोर देन 1 लाख, समथिंग लाइक दैट। तो वही उतना ही दिखाएगा फिर हम लोग को। हाँ, उतना ही दिखाएगा, ठीक ठीक, ठीक है। तो आप जैसा कंडीशन यहाँ बिल्ड करोगे, आपको वैसा डेटा दिखाएगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो वेयर क्लाउज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्या बिल्ड कर रहे हो, आप किस प्रकार का डेटा चाहिए, यू हैव टू पुट द एग्जैक्ट सेम कंडीशन, क्लियर है। तो सेलेक्ट क्लाउज, फ्रॉम क्लाउज एंड वेयर क्लाउज, ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं टू बिल्ड द सिंटैक्स। यस, एनी कंफ्यूजन? नो सर, वी विल डू सम प्रैक्टिस ऑन दिस, ठीक है, डोंट वरी। ये सर ये प्रेडिकेट एक बार थोड़ा बता देते। प्रेडिकेट मतलब कंडीशन, ठीक है, अच्छा ठीक ये ठीक, कंडीशन है, प्रेडिकेट कंडीशन है कि आप क्या कंडीशन लगा रहे हो, ठीक ठीक है, ठीक, क्या रूल लगा रहे हो, आपको किस टाइप का डेटा चाहिए, ठीक है। ओके, लिटरल्स क्या होता है, लिटरल्स, आई थिंक इन पाइथन वी सॉ दैट लिटरल्स इज जस्ट अ वैल्यू, द सेम कॉन्सेप्ट हियर, इट्स जस्ट अ वैल्यू, ठीक है। इट कैन बी स्ट्रिंग वैल्यू, इट कैन बी न्यूमेरिकल वैल्यू, इट कैन बी बाइनरी वैल्यू, जैसे कि जॉन, यहाँ मैं डबल कोट लिख रहा हूँ, इट्स अ स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, एंड 50 दीज आर द वैल्यूज, ठीक है। तो जितने स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग्स को हम लोग कोट में लिखते हैं,
ठीक है, जितना if you want to use a text a word we use a quote, सिंगल कोट में सिंगल कोट या डबल कोट दोनों यूज कर सकते हैं। ओके ठीक है, अगर नंबर लिखना है तो यू गिव अ नंबर विदाउट कोट, अगर कोट कर दोगे तो it becomes a string, तो जो भी चीज इस कोड के अंदर है बिकम द स्ट्रिंग। ठीक है, अगर विदाउट स्ट्रिंग है देन इट्स इंटीजर, और इट कैन बी फ्रैक्शन एज वेल, डेसिमल भी हो सकता है। ठीक है, वी विल डिस्कस दिस ऑल डेटा टाइप्स हैं, दीज आर कॉल्ड डेटा टाइप्स, वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, एंड दीज आर द बाइनरी फॉर्मेट। ठीक है, ओके, एंड द कीवर्ड, दीज आर द कीवर्ड like six, these are the जैसे select है, insert है, update, delete, drop। ठीक है, these are the fixed rule, these are called the keywords, इनका स्पेशल मीनिंग है। ठीक है, सो आपको मास्टर करना, यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स, व्हाट इज सेलेक्ट, व्हाट इज इंसर्ट, व्हाट इज अपडेट, व्हाट इज डिलीट, व्हाट इज ड्रॉप। तो there are so many keywords, there are so many syntax in SQL, that's what you're going to learn in upcoming classes। ठीक है, तो इसमें टेबल्स होता है, कॉलम्स होता है, इंडेक्स क्या होता है, आई विल टॉक अबाउट इंडेक्सेस, व्यूज होते हैं, स्टोर प्रोसीजर होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, इन अब डेटाबेस में यू कैन क्रिएट मल्टीपल थिंग्स, टेबल बना सकते हो, इंडेक्स बना सकते हो, व्यूज होते हैं, एसपी स्टोर प्रोसीजर होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं। ओके, सो यू डोंट हैव टू डील विद ऑल दिस थिंग्स। ओके, दीज आर द एडमिन वर्क, आपको मेनली क्रिएट करना है, टेबल्स में खेलना है, और ये कमांड प्रैक्टिस करना है, दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू डू। ओके, क्लियर? Okay. Identifier, okay, SQL is a case insensitive। ठीक है, मतलब ये अपर केस लोअर केस में प्रॉब्लम इसमें नहीं है। पाइथन में क्या होता है कि अपर केस लोअर केस डिफरेंट हो जाता है, राइट? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो सिलेक्ट को लोअर केस में लिख सकते हो, अपर केस में लिख सकते हो, दोनों सेम है। ओके ओके पाइथन में केस सेंसिटिव। हाँ, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव, बट दिस इज केस इनसेंसिटिव। तो यहाँ पर केस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोअर केस बनाओ, अपर केस लिखो, बोथ आर सेम। ठीक है, तो कभी कभी लोग सेलेक्ट को लोअर केस लिखते हैं, कभी कभी अपर केस लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, एंड कमेंट, ओके, आई होप यू नो द व्हाट इज कमेंट, राइट? सो हियर हम लोग कुछ कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट दो प्रकार के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट। ठीक है, अगर सिंगल लाइन कमेंट लिखना है, जस्ट डू हाइफन लाइक दिस, यू कैन सी दैट, हाइफन हाइफन एंड गिव द कमेंट। ठीक है, तो जो कमेंट होगा, द SQL विल इग्नोर दैट। ओके, कमेंट इज ओनली यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, कि कुछ डॉक्यूमेंट करना, कि मैं इस कमेंट क्यों लिख रहा हूँ, व्हाई आई एम राइटिंग दिस कमेंट, तो जस्ट क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट। तो comment is two way, you can use single line comment using hash this hyphen 2 times, okay, and put the comment, or multiple line, if you want to write multiple line, then use like this, a star forward slash star and star forward slash, इसको बोलते हैं C style। ठीक है, C language में, this is the C language style। तो इस प्रकार से you can write multiple lines। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा देना पड़ेगा, स्लैश स्टार स्टार्ट करना पड़ेगा, और एंड में स्टार स्लैश लास्ट में कर देना, लास्ट में। एंड हियर इन दोनों के बीच में यू कैन राइट मल्टीपल लाइंस, 3 4 5, यू कैन राइट मल्टीपल लाइंस लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल लाइन कमेंट। यस सर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके,